जोहार के जतो को तेहना वीडियो रे तेहना व्लॉग रे तो यस तेहन हुयो करना 31st ऑफ जनवरी और फाइनली तेहन विजय माझी अंकल तिकी ना ऑफिशियल रिटायरमेंट हुयो करना लास्ट वर्किंग डे करना तेहन तो सैटरडे करना 31 जनवरी तो अड़ी इमोशनल और मिक्स फीलिंग ताहेना नवा खास कर कि जहाँ को रिटायर करना कि बहांग अंकल नवा फील दाड़े कान गया है तो चलो तेना व्लॉग बन स्टार्टा और कोशिश ही नवा वीडियो नौका कटी रॉ धारा गे ताहेना चेदा से यस नवा काइंड ऑफ मेमोरी लेका आकिन हो जहाँ तीस की नेल खान हा तो यस चलो तेना व्लॉग बन स्टार्टा I also want to say that Maji sir was not only dedicated to his job, but he was also associated with many organizations, working as a secretary of ALS Santhal Association Delhi, and also was awarded to Jharkhand Ratna in 2024. And sir also had presented many papers, articles, and took lectures in various platforms. Sir, I admire your strength to handle challenges so gracefully. I admire your determination because of you never give up. I wish you the best on your next adventure. A very warm welcome to all guests and special thanks to Ma'am Parvati Maji. Ma'am is by profession, Ma'am is a teacher. Now she is retired from government job. And both the daughters and the son, the daughter Sumiti Maji, she is also by profession a teacher, and daughter Padmatani Tudu, working as a deputy director in multinational company, and son Dr. Dharma Maji, and he has completed his MD in radiation oncology from Calcutta Medical College, and also all the other family members. I welcome you all here. We know that behind every dedicated employee is a loving family who offers support, encouragement and patience. Thank you so much. Now I request all my young group boys, they can come and present a bouquet to Maji sir. तो अंकल छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जुदी लेख नहीं विजय माझी अंकल तिकीना जनाम दिसम दो हुयोकना बड़ा आमदा राजखरसावा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट दो हुयोकना सरायकेला राजखरसावा और एक खोना 7 क्लास दो अतुरेना स्कूल रेकिन पढ़ाओ कना मैट्रिक दो सेंट जेवियर चाईबासा खोनाकिन एम का और कॉलेज दो टाटा कॉलेज चाईबासा खोनाकिन कंप्लीट का तो एम्स रे जॉइनिंग माड़ांग अंकल आकिन बैंक रे होकिन जॉब का टीचर होकिन ताहे लेना और एसएससी दिल्ली रे होकिन जॉब ले तो आकिना जतो फील्ड रे डेडिकेटेड सर्विस नेल कते लोक सेवा समिति पाटा खोन 2024 रे झारखंड रत्ना होकिन नाम कदा his son Dharma and other family members. We are missing his daughters. I think they are about to arrive. So finally the moment has come to bid farewell after a long tenure of I think years, 36 years. 36 years पूरे हो गए. I think this is one of the longest tenure of one of the staff members here. अब मुझे कितानी की भी काफी लंबा पीरियड था. कितना था मैडम आपका? 39? इनसे भी ज़्यादा था. Still 30 years के बाद I think हमारे कमी थे. And long tenure and along with the length of service is the quality of service that a person gives. लाइक मिस्टर माजी के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही डेडिकेटेड और आई मीन कभी ऐसे नहीं लगा जैसे कि वो डिपार्टमेंट का काम करे. इट वाज लाइक इट वाज हिज ओन वर्क. सो दैट सेंस ऑफ ओनरशिप इज समथिंग व्हिच रियली स्टूड आउट इन हिज केस. और आई मीन बीइंग द सीनियर मोस्ट टेक्निकल ऑफिसर विद अस, लाइक ही वाज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर. तो इनका काम था, मेन काम था इनका कि ये ड्यूटी उसको संभालना. So that is one of the very tricky kind of thing. Welcome, ma'am. Dr. Basma. Congratulations to you, ma'am. God bless you. Thank you for coming, ma'am. Person as far as I'm concerned, जब मैं आउट ऑफ स्टेशन भी जाती थी और डिपार्टमेंट में रहते थे तो मुझे मतलब टेंशन नहीं होता था. लगता था कि हाँ है मतलब डिपार्टमेंट इज इन सेफ हैंड्स. सो
the kind of trust that we have. और बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना पूरी सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन से काम किया. आज भी आई मीन टुडे इज हिज लास्ट डे ऑफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. इवन व्हेन ही वाज प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट अटेंडिंग टू व्हाटएवर वर्क ही कुड. So this is something really incredible. और छुट्टियाँ भी इन्होंने बहुत कम ली है. आई थिंक इनके 500 से भी ज़्यादा मेडिकल लीव बचते हैं. बस ये तो सही है. ये है ना. So support of the family members is very important and it plays a very significant part in this. Family members के support से ही कोई भी व्यक्ति अपना काम मतलब अच्छी तरह से बिना टेंशन से ऑफिस में इतना टाइम दे सकते हैं. अगर घर के टेंशन होते तो ऑफिस में भी पूरी तरह से कर नहीं सकते. I again request Dr. Basim ma'am share some you can say experiences and जो भी सर के साथ को starting से I have heard this. But I still feel this is my own department, my home. I love coming to the hospital to meet each of my people because we worked as a happy family together. We were so happy and everybody used to enjoy working. And Maji was a boy, small boy when he joined, that is 6 years ago. Very sincere, I found him very hard working, dedicated. कुछ भी काम इसको बोलो ये करता ही था, चाहे कुछ भी तरीका निकाल के करना है. You never say no to any work assigned to me. I wish him all the best, heartiest congratulations. Now this is your golden era start, so enjoy yourself, enjoy your life, and you have such a wonderful family. इनसे तो मैं बड़ी बारी मिली, आपसे नहीं मिली. हाँ, इसी पार्ट में. अच्छा, very lovely, God bless you. क्या कहते हो? And if possible, you keep on working somewhere, maybe for 2-3 hours, to keep yourself busy with my area. Okay, thank you very much. Thank you. Maji and me and Dr. Basim and Mrs. Kirdani even मैडम आपकी ज्वाइन करने से भी पहले हैं, मैंने कोलाज बनाया है छोटा सा. हाँ बोलो. Especially for you, Mr. Maji. See later. I want to share a few words. I still remember जब माजी साहब ने ज्वाइन किया था पहले दिन, उनके ड्रेस भी मुझे याद है, वो कौन से कपड़े पहन के आए थे. अभी भगवान ने थोड़ा सा मेरे को ना ऐसा दिया कि मेरी मेमोरी में चीज़ें पुरानी बहुत रहती हैं, बड़ी रहती हैं. तो जब माजी साहब से मैं पहली बार मिला तो बहुत ही एकदम यंग पतले से थे, बहुत छोटे से लग रहे थे, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे समझ गया था. मैं कुछ टाइम समझ में आ गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है. और हमने साथ में इवनिंग शिफ्ट भी की. हमारे ज्वाइन करने के बाद हमें इकट्ठे शिफ्ट में भी डाला गया, और उसके बाद हमें एफआरएसएस की ड्यूटी, मतलब रिमेंबर एफआरएसएस के लिए हम वार्ड में जाते थे. और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि कभी भी गला काट कॉम्पिटिशन नहीं रहा, स्पर्धा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन. इनका अपना नेचर है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना है, अपना नेचर है, लेकिन हमेशा साथ चले, ठीक है. और कभी एक दूसरे के रास्ते में हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पहले आगे निकलूँ. अब हम जब ब्रेक करते थे ना लाइन, हम जब एफआरएसएस मशीन लेके जाते थे तो हम एक बार माजी करेगा फिर एक बार मैं करूँगा. तो जो माजी ने कर लिया, अच्छा सा एक लाइन मिल गई तो माजी खुश. अब तो लगता था कि भाई अब मैंने मोर्चा मार लिया. उसके बाद जब मेरा नंबर आता था तो मैं थोड़ा नर्वस होता था. करते थे भाई, हमें सिखाया था मैडम ने सारा. तो वार्ड में हमने करीब 6-8 महीने मशीन ले जाके हमने एफआरएसएस किया, न्यूरो सर्जरी आईसीयू बीईसी किया था. फिर सम्मान टॉम को फिर आपने पोस्ट किया था. तो इस तरह से मतलब हम साथ साथ चलते रहे. और मैंने देखा है कि इनका जो एटीट्यूड था ना वो हमेशा प्रोग्रेसिव है. ही इज अ क्विक लर्नर. हाँ बोलते नहीं, शो नहीं थे, एक्सप्रेशन नहीं आते थे, बट इनको ये होता था कि मेरे को ये काम करना है तो मेरे को सीखना है तो मेरे को आगे तो बढ़ना. तो ये हम उसके बाद फिर कल्पना के रिटायर होने के बाद हम इकट्ठे एक साथ काम किए. तो कभी हम चलते रहे, कभी और स्पेशली मैडम की एब्सेंस में कभी मैडम छुट्टी भी होती है तो फिर हम इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं. मैडम को कभी लगा नहीं कि भाई मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत है. हमारी आई थिंक यू एग्री. हाँ मुझे पता, कुछ समय पहले पता चला कि उन्होंने फरीदाबाद में ही अपना जो है घोंसला बनाया है और
फिर भी पास ही हैं, मिलते रहेंगे। तो दिस इज नॉट द एंड एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक। हमारी साहब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी फैमिली, इसमें तो धर्मा का जो भर्त हुआ था तो हम पार्टी खाई थी, मुझे आज भी याद है, ये गौतम नगर में इनके रेजिडेंस पे। धर्मा तो जब 93 ना, तो वहाँ पर अच्छे से याद है, आपको याद होगा सरदार जी के यहाँ पे। हाँ, तो मुझे सारी मेमोरीज हैं। मैंने यही सोचा कि मैं थोड़ा जो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी पुरानी फोटोग्राफ्स, तो मैं उसका एक कोलाज बना के आपको मैं प्रेजेंट दूँ। यही मेरी रिटायरमेंट की गिफ्ट है आपके लिए। आपके लिए डेडिकेट है। क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके ही याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। Thank you, sir, for your support and collaboration. It's been a great experience working with you. Thank you. Thank you for organizing such a good farewell party. Today, definitely I would like to say in a Hindi that would be better for all of you. कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं उस दिन क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मेरी जो जर्नी थी, मेरा जो सफ़र था 1989 में शुरू हुई बिहार झारखंड से, और मैं दिल्ली आया एम्स में, और आज टुडे इज माय लास्ट डे। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो दैट टाइम डॉक्टर Sachin was there in the interview booth. I don't still remember. फिर ज्वाइन करने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि नोटिस किया कि ये तो वही है जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठी हुई थी। तो मैंने शायद उसी दिन एक प्रकार से कह सकते हो कि मैंने कसम खा ली थी कि मैं मैम को कभी निराश नहीं करूँगा। आई नेवर लेट डाउन दिस लेडी। मैं इनके जो एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं खरा उतरूंगा। ये मैं अपने आप में वो चैलेंज ले लिया था। मैंने कोशिश करी, मैडम ने जो भी मुझे अवसर दिया काम करने के लिए, उसमें मैं खरा उतरूंगा। मैडम से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ मतलब अनलिमिटेड। हमारे डॉक्टर वजीम के लिए लोग कहते थे, जो कंपनी वाले आते थे, कि मिस्टर माझी, योर मैडम इज सुपर लेडी कह लो, या जो वर्ड्स कहा था उन्होंने, मतलब मैडम का कंपैरिजन बाकी उसमें डॉक्टर ढूंढा होगा आपके साथ ही में, बट मैडम में जो रॉयल लेडी, उन्होंने कहा था मुझे रॉयल लेडी है। मैडम का नेचर, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका ड्रेसअप, एवरीथिंग वाज एक्सटेंडिंग। तो कहते हैं ना कि आप नेचुरली अपने बॉस को फॉलो करते हो। थोड़ा थोड़ा हम भी सीखते थे हम कि चलो मैडम इतनी अच्छी है हमारी, और थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता ही है। जिस बॉस के अंदर में आप काम करते हो, कॉपी करते हो आपको, मतलब मैं तो करता हूँ। तो मैं मैडम को बहुत क्लोजली वॉच करता था। मैडम का जो फेथ था मेरे अंदर में, मेरे ऊपर में, मैंने पूरी कोशिश की। मैडम ने बहुत काम किया था मेरे को, मानी तुम ये करो वो करो। हमेशा लाइसेंस रिव्यू के लिए मुझे मैडम भेजती थी। मुझे वो भी याद है, एक बार तो प्रेसिडेंट के पास इन्विटेशन के लिए कोई प्रोग्राम था, तो आई डोंट नो हाउ शी हैज सेलेक्टेड मी फॉर ऑल दिस वर्क्स।
तो मैडम का मैंने मैडम से यही सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद कीर्तानी मैडम हमारी आती है। कीर्तानी मैडम उस समय सुपरवाइजर का पोस्ट पर है और पहले तो मुझे लगता था कि हम तो बच्चे थे, थोड़े 22-23 साल में रहते हैं, तो मुझे लगता था कि क्या मैं कभी इस पोस्ट पे आऊँगा। मतलब एक बात मैं थी कि शायद मुझे भी मौका मिले उस ओहदे में पहुँचने की। कीर्तानी मैडम के बारे में भी बहुत कुछ मैंने कॉपी करते थे मैडम को, क्योंकि मैडम ने अपने परिवार को और जो नौकरी है उसको कैसे बैलेंस करके चलती थी, मैं नहीं सीखा मैडम से ऑनेस्टली स्पीकिंग। तभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैडम कम से कम जाते जाते आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा था। मैडम ने अपने जैसे बच्चों को पाला, जय और पवन, और उन्होंने एक कामयाब डॉक्टर हैं एज ऑन टुडे। उनके शादी में भी हम लोग गए, अपने घर भी कई बार गए हम लोग। आपके सामने था और सबने बोल ही दिया है कि इनके बारे में क्या थे और क्या है। अब जैसे इन्होंने कहा कि एक शुरू से ही बहुत छोटे में आ गए थे, 21-22 साल में, तो बच्चे छोटे थे, पहले शादी हो गई, उसके बाद फिर जॉब लगी थी। उसके बाद यहाँ आकर के मैं उधर से ग्रेजुएशन करके आई ही थी, तो यहाँ आकर के फिर मैंने सोचा कि करना क्या है। फिर इन्होंने बहुत जोर लगाया कि हमें चलो कुछ तो करना होगा, यहाँ जॉब तो करना है। तो इन्होंने बीएड करवाया। बीएड करने के बाद मैंने इनके फलस्वरूप ही, इनके बोलने से ही मैंने जो चीज़ भी किया, इनके कहने से ही करते गई। बच्चे छोटे, दोनों लड़की छोटी थी, तो उस समय जैसे गांव से लेकर के आते थे बच्चों को देखने के लिए, उसके बावजूद भी ये बहुत कोऑपरेट करते थे। उनको देखना, सब कुछ करना, नहाना धोना, खाना बनाना, सब कुछ A to Z। तब जा कर के बच्चे भी बड़े हो गए, धर्म तो बाद में हुआ। और उसके बाद ये जो था कि जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल में जाते थे तो नाइट शिफ्ट लगती थी, ये नाइट शिफ्ट करते थे और मेरा इवनिंग शिफ्ट। तो इस तरह से हम बच्चों को इधर उधर करके हमने बड़ा किया। तो ऐसा समझिए कि इनका कोऑपरेट बहुत था, अभी तक है। बच्चे बड़े हो गए बट अभी तक कोऑपरेट करते ही रहते हैं, जो भी, बट थोड़ा सा अभी कम हो गया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। सब अपना अपना सोचते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, इसलिए अभी सोचते हैं कि चलो जो है जैसा है होते गया, सब कुछ भगवान की देन से सब कुछ सही होते गया और चलते जा रहा है। बहुत खुश रहती हूँ एंड ज़्यादा नहीं है। थैंक यू आप सबको, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एज वेल। तो मैं चाहूँगा ऑफकोर्स अपनी टच में ही रहे पापा के, और थैंक यू सो मच। और आउट ऑफ पूरा दिन पापा मम्मी दोनों बहुत सैक्रिफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं एंड थैंक यू सो मच। एंड बियॉन्ड ऑलवेज कई बार आकर देख आता है कि मैं डॉक्टर एक्चुअली फील करती है कि आपके बच्चे रियली गोइंग टू मिस यू। रिस्पेक्टेड CNC ब्लड बैंक के सीनियर ऑफिसर्स, बाकी सारे स्टाफ, मेरे थोड़ा 2-3 सर एक्चुअली मैं विजय माली सर मेरे जीजा जी हैं और मेरी दीदी हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर किए हैं, तो कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली में आए थे 96 में शुरू में, तो मैं दीदी और सर के साथ ही रहते थे, एक साथ रहते थे हम लोग गौतम नगर में, काफ़ी सब थे एक साथ। तो राइट नाउ मैं भूडको पुलिस में रहता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ मैंने जो आप लोगों से सुना कि एक एम्स का जो फैमिली है, फैमिली को किस तरह से इन्होंने रन किए हैं, और दूसरी जो हमारे अपने एक घर के फैमिली वहाँ भी है। इसके बाद और एक फैमिली है उनके, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक सोसाइटी के प्रति भी उनका एक फैमिली जैसे ही काम है। इन्होंने मतलब तीनों जो जो सेक्टर है इसमें इतना अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है, हमने फील किए हैं जब से मैं शुरू में था, बिगिनिंग अभी भी हम मतलब उनके छत्र छाया में इतने सारे चीज़ें हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो
जब हम शुरू में आए थे तो उस टाइम हमें तो बिल्कुल कुछ पता भी नहीं था, तो काफ़ी सारे चीज़ें उनके गाइडेंस में हमने काम किए। तो फिर हमने अभी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में अंडर सेक्रेटरी हूँ, सिविल सर्विस डिवीजन देखता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। जब भी जैसे ये काम एम्स के काम में होता है, उसके बाद भी जैसे भी छुट्टी होते हैं और भी कुछ और भी जब भी वो मतलब ड्यूटी में भी रहते हैं, तो कुछ चीज़ें जैसे हमारे सोसाइटी का काम होता है तो कभी इन्होंने कभी मना भी नहीं करते थे। जब भी उनको मौका मिलता है कि यहाँ जाना जरूरी है तो एकदम से आ जाते हैं। और हमारे जो हमारे एक सोसाइटी हमारा ऑल संथाल एसोसिएशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारा, और दिल्ली में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके साथ इनका जो जुड़ाव है ना बहुत ही अच्छा है। ये काफ़ी मतलब बारीकी से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और ये इनके जो एक तजुर्बा है वो सोसाइटी के प्रति काफ़ी मतलब इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जोतो हर आड़ी बेस कॉम्प्लीमेंट्स को एमात किना अंकल तिकिन और जहाँ तीना मेमोरीज को तहलेना ओना को शेयर किया। तो आड़ी ओवरवेलमिंग बुझा जहाँ माने आबो तरफ खोना माने आबो सांताड़ खोना जुदी नीना भागे पोस्ट खोना रिटायर कना किन और पूरा 36 साल नुना चेहरा पोस्ट रेकिन कमी किया, एम्स रेकिन कमी किया। तो जाई होक नोंगा के प्रोग्राम को ऑलमोस्ट चाबा गोदो कान ताहेना और इना पूरे लंच रे अरेंजमेंट होता है लेना। लंच को हुई बड़ा करते फाइनली अंकल डिपार्टमेंट ले चलावेना। तो नोआ हुयो काना एम्स रे कैंपस और इन फर्स्ट टाइम नोआ नुना भितरी एम्स हाँ बोलो कनी, वैसे एम्स हाँ बिसी बलिंग चलाव बड़ा कना एक दो बार गे। हाँ तो जाई होक नोआ दाव होलिंग नाम के अंकल थ्रोते कि एम्स रेलिंग बोलो बड़ाए ना। और नोआ हुयो कान तकिना आकिना डिपार्टमेंट जहाँ CNC ब्लड डिपार्टमेंट। और यस नोआ अंकल लास्ट आज आकिना जहाँ ऑफिस आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड ताहेना ओना किन हरक किया। और यस आंटी द बॉस अंकल सीट रे दुड़ुब नाय और नोआ अंकल फाइनल यूनिफॉर्म माने नौका अंकल ऑफिस यूनिफॉर्म ताहे लेना। तो वन लास्ट टाइम अंकल आकिना यूनिफॉर्म किन हरक किया। इना पोरे ऑफिशियल रूप ते आकिना डिपार्टमेंट खोना किन ओडको काना लास्ट टाइम, मतलब ऑफिशियली नी तो जुदी किन चला एनखान जहाँ पेड़ा हिसाब बको मेना पेड़ा रूप ते किन चला कि बान विजिटर रूप ते किन चला। तो नौका तो अड़ी मिक्स इमोशन ताहे लेना। मतलब जोतो हर दुख को बुझोया कि मतलब नुना चेहरा अंकल जहाँ तीना सपोर्ट ताहे लेना नवा डिपार्टमेंट रे जोतो हर को सला अड़ी गड़ो सपड़ो किन कमी लेआ। तो यस कहीं ना कहीं मैंने आपे हो पे रिलेट दाड़े आज जुदी जहाँ आपे रिटायर करना पे कि बांग रिटायरमेंट रे फेज रे में ना पेया कि बांग जहाँ ना हमने जॉब रे में ना पेया। तो चले का फीलिंग हिजुआ। तो और जहाँ तीना होड़ को से ड्यूटी रे को तहन लेना को से तो उनको हो मैंने मौका नाम करते लास्ट बार नापाम लगित को हिजू कान तहना अंकल सला। तो लास्ट नवा जहाँ ब्लड डिपार्टमेंट तहना ओना सामांग रे फोटो को खिंचक कान तहना। तो नवा को के छोटा मोटा मेमोरीज कना जहाँ की पोरेते अंकल तिकिन की नेला कि बांग बाकी होड़ को नेला। तो नवा एम्स जहाँ बिल्डिंग बाहरे रे हो दोमे फोटो सेशन को हुई ना और छोटा मोटा जहाँ मेमोरेबल स्पीच को तहना ओना को हुयो कान तहना। तो अड़ी बेस बुझोए ना मतलब इन हो रिलेट दाड़े कने जदा से पापा हो नौका टाइम रेगे रिटायरमेंट हुई लेना। तो कहीं ना कहीं मतलब रिलेट दाड़े कान नहीं चले का बुझा। तो जाई होक अड़ी बेस अड़ी प्राउड फीलिंग हुयो कना। तो यस नौका गे रिटायरमेंट माने इन खुद वर्ड्स बई नामे कि नोआ रिटायरमेंट वीडियो चेतले काते डिफाइन नहीं। तो जाई होक नौका गे तेहना वीडियो ताहे लेना रिटायरमेंट रिया नोआ दो युकना पार्टी 2 3 और 4 बाकी गया। तो यस वीडियो जुदी कुसी कौदा पे लाइक पे शेयर पे और आरो नौका ना वीडियो की बांग व्लॉग ने लगी नोआ चैनल सब्सक्राइब तबन पे मा एन खान जोहार।